Hello students, today I am going to record lecture on lambda and high order functions. It is very important and quite complex concept, so I will try to explain the concept in Hindi so that you can understand the concepts clear. Uh, First of all, we will go for the lambda expression. So the lambda expression is basically lambda is a feature of Python by which we can create the anonymous functions. तो एनोनिमस फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसका कोई नाम नहीं होता. यू कैन सी एनोनिमस फंक्शंस आर द फंक्शंस दैट आर नॉट बाउंड टू अ नेम. इसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं होता. एनोनिमस फंक्शंस आर क्रिएटेड बाय यूजिंग द कीवर्ड लैम्डा. लैम्डा के थ्रू आप इसको बना सकते हो और इस फंक्शन को बनाने के लिए डेफ कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं होता है. जैसे कि आप देखते हैं कि पाइथन में आप जब फंक्शन बनाते हैं तो बेसिकली वहां पर हम इस्तेमाल करते हैं डेफ कीवर्ड का. बट व्हेन यू वर्क विद द लैम्डा तो इसमें डेफ कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं होता. एंड जो इसका सिंटैक्स है ये है आपका लैम्डा और आप देख सकते हैं दैट इज आर्गुमेंट यहाँ पे आप पास कर सकते हैं. देन कोलन जो भी आपको उसकी डेफिनेशन है आप यहाँ पे दे सकते हैं. हम लोग देखते हैं इसका एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल सपोज आप एक फंक्शन बनाना चाह रहे हो. सपोज आई क्रिएट अ फंक्शन विच कंटेन्स two numbers as argument and return the summation, yeah, of both numbers. So you can use you can create the lambda. The arguments are a and b and the result is a plus b. So this is anonymous function. We pass the reference of this function into any variable, for example my add. So my add contains the reference of this function. You can just execute this line, yes. And for suppose you want to get the result, so you can use result is equal to my add will treat as a function and you can pass the argument that is 10 and 20 and then you can print a result. You can check it out. So my add here it is looking like a variable, but अगर आप इसमें देख रहे हैं कि लैम्डा फंक्शन ए और बी दो आर्गुमेंट लिया है और कोलन करके आपने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन दी है, मतलब ये फंक्शन रिटर्न करेगा ए प्लस बी जो माई ऐड के अंदर चला जाएगा. तो माई ऐड दिख तो एक वेरिएबल की तरह रहा है लेकिन ये काम करेगा एक फंक्शन की तरह. तो आप इसमें आर्गुमेंट पास करोगे तो ये इस फंक्शन को पर्टिकुलर कॉल करेगा. एक और एग्जांपल देख सकते हैं. फॉर एग्जांपल मान लो कि हमें एक दूसरा एग्जांपल अगर देखना है और मैं एक अलग एग्जांपल देखता हूँ. या सो मैंने एक नया फंक्शन बनाया, क्रिएट अ फंक्शन named as max which contains two numbers as argument and return the largest one. Okay, so my max is equal to lambda. The arguments are a comma b, two arguments, colon, definition, return a if a is greater than b, else we can return b. So the lambda function pass the reference into the my max and you can call result is equal to my max and simply you can pass two arguments 10 and 20 and certainly you will get the result, yeah, 20. So you can see the lambda function is one liner function, basically known as anonymous function. You can pass the reference of that function into the variable and in variable you can pass the argument. We can use the lambda function in some other ways also, we will see after some time. Okay. Okay, now we will discuss about the another concept, important concept, high order functions. So the high order functions are very special type of functions which contains function as function argument. So normally in a function
we pass the uh, list or any other object as argument. But if a function contains another function as argument, then these are known as high order function. For understanding this concept in the real life, suppose we want to process a list like this: 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus that is up to n times. Okay, or the second operation of this list is 1 to power 1 plus 2 to power 2 plus 3 to power 3 plus that is plus n to power n, and the next one is that is 1 की power 1 का cube plus 2 का cube plus 3 का cube plus up to n का cube. So if suppose I want to process this series by a single function, so these are basically a geometric series. Either you can perform this. I want to create a function which process all these elements. So first, for getting the identity value, for the values I am creating a function. Suppose def the function identity. This function just contain the n, so x you can say, or you can say the val, and return val into val, val into val. The next function def square, the square function contains val and return the square of particular value, and the cube function contains val and return the val into val into val. You can also use the exponent operator, no issue. So I'm just create these functions for getting the individual. These are different functions, and now I'm going to create a function cal c which contains the function as argument and the target value n as argument. And what it will do, it will just creating the sum of all these values. So for I in range 1 to n plus 1, and sum is equal to sum plus function of I, and just you can print the value of sum, no problem. Okay, so here I am targeting the func is a function and n is a limit value. So the cal c functions contains the function as argument, so it is known as high order function. So if I will uh, I had just missed the variable that I in range. Okay, now everything is fine. Yeah, so uh, if you call this one, suppose I'm calling this one, I'm calling the cal c function and passing the identity function as argument, and that limit value is 10. So call this one, yeah, get the 55. Why 55? The identity function you are passing here and the target value is 10. So if you calculate 1 plus 2 plus 3 plus uh, up to 10, so certainly up to 10, so certainly you will get 55. You can calculate on your system. Similarly, if you pass the square function and suppose limit value is 4, so you can get it yeah, the 4. If you pass the 4, I think 1 2 to 4 plus 9. Yes, when you calculate you will certainly get the uh, and this is 16. Yeah, 16 for 20
plus 10 30, you can, yeah, certainly you will get the 30. Okay, similarly if you pass the cube function, then you can also calculate, you will get the result. So this calc function is a special kind of function which contains a function argument, so it is known as second order function. So there are the built-in two second order functions we use multiple times. The first one is map function and the second one is filter function. First we will, the map functions contains two things as argument. First is function and second one is iterable objects. Okay, so if you talk about the uh, suppose I'm just going to delete all this. Yeah, 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 again I'm here. So if you for understanding, suppose I have a list, so this is the list of a range, that is 10. Yeah, so it will be create a list of 0 to 10, and you can print the list also for checking the result. Yeah, suppose I want to get the square of all these numbers. Okay, suppose, so I've created the function def square into the n, and uh, into the n, and it is just returning n into n. Okay, then so suppose I have another list, result list, and we want to use the map function. मैप फंक्शंस टू कंटेन्स टू आर्गुमेंट. पहला एक फंक्शन होगा दैट इज स्क्वायर, और दूसरा हमारी लिस्ट होगी. अब होगा क्या कि लिस्ट का एक एक एलिमेंट इस फंक्शन के अंदर पास होगा और जो भी रिजल्ट जाएगा वो रिजल्ट लिस्ट के अंदर आ जाएगा. लेकिन एक चीज यहाँ पे समझने वाली बात है कि अगर हम रिजल्ट लिस्ट को यहाँ पे प्रिंट कराएंगे तो रिजल्ट लिस्ट एक मैप फंक्शन एक मैप ऑब्जेक्ट पास करता है, सो आपको इसको लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो आप अगर इसे लिस्ट में कन्वर्ट कर दोगे तो यू कैन गेट द प्रॉपर रिजल्ट. या एंड नाउ हियर इज द आउटपुट. यू कैन से हुआ क्या, लिस्ट से एक एक एलिमेंट उठ के स्क्वायर फंक्शन के अंदर गया, स्क्वायर फंक्शन ने उसका स्क्वायर कैलकुलेट किया और इसके अंदर पास कर दिया. सो आप देख सकते हैं कि जितनी भी हमारी लिस्ट है, ये सारी लिस्ट, ये इस पे सारे लिस्ट एलिमेंट्स पे हमारा स्क्वायर फंक्शन अप्लाई हुआ और अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पर, तो एक मैप फंक्शन खुद एक फंक्शन है और इसके अंदर हमने एक दूसरा फंक्शन आर्गुमेंट पास किया, तो ये हमारा हो गया हाई ऑर्डर फंक्शन. सिमिलरली कुछ एग्जांपल्स और हैं इसके, जैसे आप मैंने लास्ट ट्यूटोरियल में भी आपको बताया था, वेट अ मिनट, या लास्ट ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया था कई बार जब हम हैकर रैंक पे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं तो हमारा इनपुट कुछ इस तरीके से रहता है, इनपुट कुछ इस तरीके से रहते हैं, जैसे स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आपका हो गया 10 20 30 40 50 ऐसे इनपुट्स होते हैं. आपको उन सारे इनपुट्स को उठा के एक लिस्ट में प्रोसेस करना होता है. तो जब आप उसको लिस्ट में प्रोसेस करते हो तो आप लगाते हो, आप ऐसे आपने कहा इनपुट्स डॉट स्प्लिट आप करते हो तो लिस्ट में प्रोसेस हो जाते हैं. अगर आप लिस्ट को प्रिंट करा दें तो आप देखेंगे कि सारे एलिमेंट अलग अलग हो गए, ये सारे एलिमेंट अलग हो गए. लेकिन यहाँ मैंने बताया था ये प्रॉब्लम आपको कि अगर ये सारे एलिमेंट आपको अलग अलग तो हो गए लेकिन ये किस फॉर्मेट में है, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, तो आप इसमें न्यूमेरिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे. तो अगर आप इसको डायरेक्ट लिस्ट के फॉर्म में और न्यूमेरिकल फॉर्म में करना चाहते हैं तो वहां पर आपको आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसका, मैप का. आपने कहा कि भाई इनपुट डॉट स्प्लिट ये आपको लिस्ट रिटर्न करेगा, लेकिन आपने कहा कि मैप फंक्शन आप इनपुट डॉट स्प्लिट के सारे एलिमेंट्स को आप किस में पास करो, तो इनपुट डॉट स्प्लिट इनको लिस्ट में कन्वर्ट करेगा, 10 को अलग करेगा, 20 को अलग करेगा, 30 को अलग करेगा, 40 को अलग करेगा, 50 को अलग करेगा. फिर एक एक एलिमेंट को उठाएगा, इंटीजर फंक्शन के अंदर पास करेगा और इंटीजर फंक्शन चला जाएगा लिस्ट के अंदर.
तो आपको पता ही है कि मैप फंक्शन मैप ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो लिस्ट के अंदर। और आप इसको, अब देखिए आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी सारे। तो मैप फंक्शन ने क्या किया, एक एक एलिमेंट को उठाया, इंटीजर फंक्शन के अंदर पास किया, और मैप ऑब्जेक्ट ने उसको एलएसटी के अंदर पास कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो मैप एक बहुत अच्छा फंक्शन है। दूसरा इसका एक एग्जांपल होता है फिल्टर फंक्शन। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इट टेक्स अ फंक्शन एंड इट ट्रेबल एज आर्गुमेंट एंड कंस्ट्रक्ट अ न्यू ट्रेबल बाय अप्लाइंग द फंक्शन टू एवरी एलिमेंट इन द लिस्ट। यहाँ पर भी दो आर्गुमेंट लेता है, मैप की तरह ये भी फंक्शन लेता है, इट ट्रेबल लेता है, लेकिन इसके काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। ये बूलियन वैल्यूज पे अपना ऑपरेशन परफॉर्म करता है। जैसे अगर आप देखें, मान लीजिए कि हमारे पास एक लिस्ट है, लिस्ट के अंदर हमने एक लिस्ट जनरेट करी, रेंज जनरेट किया हमने 1 से लेके 10 तक की, और लिस्ट को आप देख सकते हैं। इसको आप अगर आप प्रिंट करें तो लिस्ट के अंदर आपने इस्तेमाल किया, ये आपकी लिस्ट तैयार हो गई। अब मुझे सारे एलिमेंट चाहिए जो 5 से ऊपर हैं, तो हमने एक फंक्शन बना दिया, डेफ नंबर्स ग्रेटर देन 5 या, और हमने यहाँ नंबर को ले लिया, और मैंने कहा कि भाई ऐसा करो कि रिटर्न करो नम इज ग्रेटर देन 5 को। ये फंक्शन ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि अगर नम की वैल्यू 5 से ज़्यादा है तो ये ट्रू देगा, नहीं तो फॉल्स देगा। अब हमने क्या किया कि हमारे पास एक नई रिजल्ट लिस्ट है जिसके अंदर हमने फिल्टर फंक्शन को अप्लाई किया। दो आर्गुमेंट लेता है, पता है आपको। तो पहला हमने पास किया नंबर ग्रेटर देन 5, और हमने यहाँ पे पास कर दिया किसको, लिस्ट को। तो ये भी मैप ऑब्जेक्ट की तरह क्या करता है कि अगर आप इसको प्रिंट कराएंगे रिजल्ट लिस्ट को, तो मैप ऑब्जेक्ट की तरह ये भी आपको एक फिल्टर ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। तो जाहिर सी बात है इसको भी आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा लिस्ट में, और फिर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैंने इसको रन कराया, और ये मैंने इसको, आप देख सकते हैं आपके पास सारे एलिमेंट आ गए। तो ये फिल्टर फंक्शन बूलियन वैल्यू पे काम करता है। अगर रिजल्ट जो फंक्शन ट्रू रिटर्न कर रहा है तो उसको यहाँ पर पास कर देगा, और फॉल्स है तो उसको यहाँ पर रिटर्न नहीं कर देगा। जबकि मैप ऑब्जेक्ट क्या करता है कि वो सारे एलिमेंट्स पे ऑपरेशन परफॉर्म करता है। इस सेम चीज को अगर आप लैम्डा एक्सप्रेशन से लिखना चाहें तो आप लैम्डा एक्सप्रेशन से भी सेम चीज को आप लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे भाई, अगर आप इसको लैम्डा एक्सप्रेशन से लिखना चाहें तो आप लैम्डा से कैसे लिखेंगे, या तो अगर आपको रिजल्ट लिस्ट चाहिए तो आपने कहा कि लिस्ट में कन्वर्ट किया, आपने कहा क्या, फिल्टर। फिल्टर के अंदर पहला आपका क्या होता है, फंक्शन होता है। तो हमने कहा लैम्डा, आर्गुमेंट क्या है आपका, n है, और आपको रिटर्न वैल्यू क्या है, n इज ग्रेटर देन 5। तो ये तो आपका हो गया लैम्डा, और आपकी वैल्यू क्या चाहिए आपको, लिस्ट। अब अगर आप देखेंगे इसे आप रन कराएंगे और आप प्रिंट कराएंगे रिजल्ट लिस्ट को, तो यू विल गेट द सॉरी रिजल्ट लिस्ट को, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने अलग से फंक्शन नहीं बनाया, बल्कि लैम्डा n को पास कर दिया, और n की जो स्क्वायर की जो हमारी ग्रेटर देन 5 की डेफिनेशन थी हमने पास कर दिया। तो हम लोग लैम्डा से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो मैप हो चाहे आपका फिल्टर हो। ठीक है, ये थोड़ा सा मुश्किल कंसेप्ट है, आप इसको समझने की कोशिश करिएगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट लिख के आप बताइएगा, या मुझे पर्सनली व्हाट्सएप करिएगा, देन वी कैन अंडरस्टैंड मच बेटर। हैकर रैंक पे मैंने क्वेश्चंस को अपलोड कर दिए हैं, इसे 24 आवर्स के अंदर सॉल्व करके आप सबमिट कर दीजिए। थैंक यू।